Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter globe, latitudes and longitudes, and under this chapter we are discussing about latitudes and longitudes only, but here these are completely new terms for you, and you must be wondering why we are drawing these imaginary lines on the globe. What is the need of drawing these imaginary lines which are called latitudes and longitudes on the globe? So I told you that why we need these lines. We need these lines, these imaginary lines, because they help us to locate any place on the earth. Exact location can be known only with the help of longitude and latitude. So just in order to for the convenience only, these lines are imagined, so that we can locate any place on the earth exactly. And as we have seen in the previous class that both these longitude and latitudes, when they are drawn on the globe, they form a grid, है ना, एक ग्रिड बन जाता है, और इस ग्रिड से हमें किसी भी प्लेस को लोकेट करना बहुत ही आसान हो जाता है. लाइक इफ वी आर नोइंग दैट एनी प्लेस इज देयर, सपोज आई एम जस्ट एज्यूमिंग, ओके, एनी प्लेस, द नेम ऑफ द प्लेस इज ए नाम का एक प्लेस है, and this place is located at the latitude of suppose 20 degree north, okay, and the longitude at which this place is located is, okay, the longitude at which this place is located is suppose 10 degree west. Okay, so now how we will locate this place? कैसे हम इस place को locate करेंगे? In the previous class also we have located such places. तो जब ये बार बार आप करोगे तो you will become very comfortable with these terms and their utility, है ना. तो ये जैसे ये हमारा अर्थ है, this is our earth, okay, and this is equator, its value is 0 degree, we are knowing all these things, and then these are parallels of latitude, है ना, these are parallels of latitude, and suppose this latitude is 20 degree north, the value of this latitude is 20 degree north. We have also discussed how we measure the degree of the latitude. ये सब हमने डिस्कस कर लिया है ना. तो this is your 20 degree north latitude, and suppose ये इसी तरह से आगे बढ़ता है, this is 40 degree north, है ना, this is 60 degree north, and यहाँ पर जहाँ पे पोल होता है that is 90 degree north, है ना. इसी तरह से नीचे भी जाता है, ये this is 20 degree south, this is 40 degree south, this is 60 degree south, और जहाँ पर पोल है that is 90 degree south, है ना. अब हमारे जो प्लेस है, ए नाम का जो प्लेस है, that place is located at the latitude of 20 degree, ठीक है. ये जो 20 degree north latitude है, इसी पर कहीं ना कहीं ये लोकेटेड है. एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है ये नहीं पता चल पा रहा है. If we have only this much information, suppose we have only information about the latitude on which this place is located, ठीक है. तो A जो है ये हमें पता चल गया कि 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे ये लोकेटेड है. अब यहाँ पर ये इसमें पूरे में ये जो पूरा एक सर्कल है जो अर्थ के चारों तरफ है,
उसमें वो कहीं पे भी हो सकता है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पाएगा. ओनली विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड. इन ऑर्डर टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट वी मस्ट नो द लॉन्गिट्यूड, है ना. तो इसका जो लॉन्गिट्यूड जिस लॉन्गिट्यूड पे ये सिचुएटेड है दैट इज 10 डिग्री वेस्ट. ओके, ये हमें पता चल गया कि अच्छा इसका जो लॉन्गिट्यूड है इस प्लेस का वो किस प्लेस पे किस लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है, 20 डिग्री वेस्ट पे. तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे लॉन्गिट्यूड है उसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, है ना. तो ये तो हमारा 0 डिग्री हो गया प्राइम मेरिडियन जो कि ग्रीनविच से क्रॉस करता है ना. ये 0 डिग्री है लॉन्गिट्यूड. इसके बाद जो होते हैं इस तरह से दोनों पोल्स को जो मिलाने वाली इमेजिनरी लाइंस होती हैं इन्हीं को हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. दीज आर लॉन्गिट्यूड्स, है ना. तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स है, सपोज करिए कि ये वाली जो सेकंड वाली ये तो 0 डिग्री है ना. ये वाला जो है ये 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड है. तो जहां पर ये 10 डिग्री ये वेस्ट है, जो 0 डिग्री के वेस्ट में होगा वो वेस्ट है, और जो इस डायरेक्शन में जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होंगे वो क्या होंगे, वो ईस्ट होंगे, है ना. तो जब हम इसको पढ़ रहे हैं कि ये जो प्लेस है ए, उसका कहाँ पर लोकेशन है, इट इज लोकेटेड ऑन दी 10 डिग्री वेस्ट. तो ये वाला जो है ना ये इस लॉन्गिट्यूड पर ये लोकेटेड है. ओके, तो अब इस लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है ये तो हमें पता चल गया, ये वाली, है ना. और जो लैटिट्यूड है वो 20 डिग्री नॉर्थ है. तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, the point at which this 20 degree north latitude and 10 degree west longitude are intersecting each other, that is the exact location of A, place A. Okay, ये हम कर लिए. अब इसके बाद जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, इसको अगर आप दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना. थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. नाउ दूसरी चीज़ जो हम देख रहे थे कि लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टाइम, बिकॉज अर्थ जो है वो हमेशा मूव करता रहता है, और अर्थ जो है वो कभी अर्थ का जो आधा पोर्शन है वो सन के सामने होता है, फिर वो आधा पोर्शन धीरे धीरे पीछे चला जाता है, वहाँ अंधेरा हो जाता है. तो एक बार में जो अर्थ है वो एक चक्कर पूरा लगाती है, कितने देर में लगाती है, 24 आवर्स में, है ना. और एक पूरे चक्कर में कितने डिग्री अर्थ घूमता है, पूरा गोल घूमता है. इसका मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिग्री, 360 डिग्री. तो 24 आवर्स में जो अर्थ है वो 360 डिग्री मूव करता है ना. तो इसको भी हम देख चुके थे, बिकॉज यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, दैट इज वाई आई एम रीइंफोर्सिंग दिस, है ना. इसमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप बहुत सारी नई चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसमें दिक्कत आती है. एज यू टोल्ड इन द ऑनलाइन क्लास, यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स, यू आर नॉट एबल टू गेट ऑल दीज थिंग्स. दैट्स वाई हम फिर से इसको रीइंफोर्स कर रहे हैं ताकि आपको किसी तरह की जो भी कन्फ्यूज़न हो वो सारा क्लियर हो जाए, है ना. तो ये आपको समझना है कि अगर अर्थ जो है वो 24 आवर्स में 360 डिग्री जो है अर्थ मूव कर रहा है 24 आवर में, है ना. यूनिटरी सिस्टम में आपको मैथ्स बनाना है. तो 1 डिग्री अर्थ कितनी देर में मूव करेगा, यहाँ पर हमको इस आर को मिनट में कन्वर्ट करना होगा. तो हमारा क्या आया है, 4 मिनट्स, है ना. वी हैव डन दिस ऑल्सो. 1 डिग्री मूव करने में अर्थ को 4 मिनट्स लग रहे हैं. 4 मिनट्स में अर्थ 1 डिग्री मूव कर रहा है ना. 4 मिनट्स में 1 डिग्री मूव कर रहा है. तो 1 मिनट में अर्थ कितना डिग्री मूव करेगा, 1/4. तो 60 मिनट्स में अर्थ कितना डिग्री मूव करेगा, 1/4 इंटू 60 यानी कि 15, है ना. तो 1 मिनट में जो अर्थ है वो 15 डिग्री मूव कर जाता है. यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. इसको जब समझेंगे तभी हम आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे. ओके, अब यहाँ पर आपको ये समझना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि 60 मिनट्स में अर्थ जो है वो 15 डिग्री मूव करता है ना.
15 डिग्री मूव करने में अर्थ को 60 मिनट्स का टाइम लगता है, यानी कि 1 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है। और एज वी हैव सीन कि जैसे जब हम लोग लैटिट्यूड की बात करते हैं तो उसमें हमें दिक्कत नहीं आती है। 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो इक्वेटर जो है वो तो आराम से मतलब दैट इक्वली डिवाइड्स द अर्थ, उसके लिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि वो लैटरल है, बीच में से आधे आधे उसने बांट दिया। लेकिन यहाँ पर जब हम लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे होते हैं तो वी फेस दैट प्रॉब्लम एंड दैट इज वाई क्या हुआ, कंट्रीज ने क्या अग्री किया था कि किसको हम किस लॉन्गिट्यूड को हम के रेफरेंस में ही हम बाकी लॉन्गिट्यूड्स को कंसिडर करेंगे। इट वाज द लॉन्गिट्यूड विच पासेस थ्रू द ग्रीनविच, है ना, जो लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच से पास करेगी उसको ही 0 डिग्री माना गया है ना। इट इज ओनली फॉर कन्वीनियंस, ये हमेशा आपको याद रखना है। जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं अभी, अगर हम देखें तो हम टाइम घड़ी क्यों बनी, हमारी कन्वीनियंस के लिए। कैलेंडर्स क्यों बने, हमारी कन्वीनियंस के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये चीज़ें कुछ नेचुरल है हमारे साथ, ये इतनी इनके साथ हम जी रहे हैं इस तरह से कि हमें लगता है कि नेचुरल है। सारी चीज़ें इंसान ने अपने लाइफ को आसान बनाने के लिए किया है ना। तो यहाँ पर हमने ये डिसाइड किया, जो डिफरेंट कंट्रीज के पीपल थे, दे डिसाइडेड दैट द लॉन्गिट्यूड विच पासेस थ्रू द ग्रीनविच विल बी कंसिडर्ड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, है ना। और इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के जो वेस्ट में 180 लॉन्गिट्यूड जाएंगे, ये भी हम लोग पढ़े हुए। इन सब चीज़ों को आपको एक साथ लेकर चलना होगा, है ना, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो 0 डिग्री के इधर 180 लॉन्गिट्यूड्स खींचे गए हैं और 0 डिग्री के वेस्ट में भी 180 लॉन्गिट्यूड्स खींचे गए हैं, है ना। और आखिर में 0 डिग्री के एकदम उधर में जो उसके बराबर में लॉन्गिट्यूड पड़ता है, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी 180 है। वहाँ पर 180 ईस्ट और 180 वेस्ट दोनों मिल जाते हैं, दोनों सिंगल एक ही लॉन्गिट्यूड है ना। तो ये इस तरह से हमने देखा था ना कि 0 डिग्री और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड दोनों मिल करके अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं वर्टिकली, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये आपको रिकलेक्ट करने की ज़रूरत है अगर आपको टाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना है तो। ठीक है, तो ग्रीनविच पे सपोज करिए कि 12 बज रहे हैं, सन की जो रे है वो बिल्कुल सीधी पड़ रही है और वहाँ पर 12 बज रहे हैं। ठीक है, अब ये टाइम क्या है यहाँ पे 12 नून, दोपहर के 12 बजे। अब जब इधर ईस्ट में दिस इज 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड दिस इज 15 डिग्री वेस्ट, है ना। लॉन्गिट्यूड ये 0 डिग्री के इधर वाला ईस्ट हुआ, जो वेस्ट में है वो वेस्ट हुआ। ठीक है, अब ये जो 15 डिग्री ईस्ट है और 15 डिग्री वेस्ट है। ठीक है, एक चीज और अभी याद करना है जो कि पहले हम लोगों ने जिसके बारे में पढ़ा है कि जो अर्थ है वो कैसे मूव करती है, किस डायरेक्शन में मूव करती है। इट मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करती है, फ्रॉम वेस्ट से ईस्ट में मूव करती है। ओके, अब जो हम देख रहे हैं कि 60 मिनट्स में अर्थ जो है 15 डिग्री मूव कर जाएगी, है ना। 15 डिग्री जो हम अर्थ को मूव करने में 1 घंटे का टाइम लगता है। तो अगर ग्रीनविच पे 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री ईस्ट जिसको हम कह रहे हैं, जो कि ये है, यहाँ पर क्या अभी बजा होगा। ये जो भी इधर का टाइम होता है ईस्ट का टाइम था, क्योंकि सन का जो मूवमेंट है दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ईस्ट वाली जो पार्ट होती है, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है, वो पहले चलता है, मतलब वो आगे होता है, वहाँ पे सनराइज पहले होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर बाद में आता है, तो वहाँ पे सनराइज बाद में होता है ना।
ईस्टर्न हेमिस्फेयर जो है वो सन के सामने पहले पड़ता है, क्योंकि अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो सन राइजेज फर्स्ट इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो इधर वाला जो होता है वो आगे चल रहा होता है, इधर वाला जो वेस्टर्न हाफ होता है वो पीछे चल रहा होता है। ठीक है, क्यों पीछे, वेस्टर्न हाफ पीछे चलता है, ईस्टर्न हाफ आगे चलता है? क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट में मूव करता है। तो ईस्ट वाला पोर्शन सन के सामने पहले पड़ा, तो वहां जल्दी सुबह हो गई, उधर अभी रात ही है, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर ग्रीनविच पे 0 डिग्री पे अगर 12 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री ईस्ट जिसको हम कह रहे हैं वहाँ पर क्या बजा होगा। सो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर आगे चल रहा है और 0 डिग्री पे दोपहर के 12 बजे हैं, तो ये 15 डिग्री का जो डिफरेंस है वो 1 घंटे का फर्क लाएगा, है ना, क्योंकि 15 डिग्री मूव करने में अर्थ को 1 घंटा का टाइम लगता है। ये हमने निकाला था ना, है ना, ये कल इसको हमने सॉल्व किया था अच्छे से, आज फिर से मैंने रेनफोर्स किया, क्योंकि अभी इसके बिना आपका ये समझ में नहीं आएगा, है ना। तो 15 डिग्री मूव करने में अर्थ को 1 घंटा लगता है। तो अर्थ जो है जब 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो उसके 15 डिग्री ईस्ट में 1 घंटा वो आगे चल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या बज रहा है, 1 PM, 15 डिग्री ईस्ट में दोपहर के 1 बज गए हैं, जबकि ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं। ठीक है, अब अगर ग्रीनविच के पीछे हम देखें, यानी कि वेस्टर्न साइड में देखें, तो वेस्टर्न साइड में 15 डिग्री वेस्ट जो लॉन्गिट्यूड है उस पर क्या टाइम हो रहा होगा, वो 1 घंटे पीछे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बज रहा है, यहाँ पर 11 AM। ठीक है, 15 डिग्री वेस्ट पे 11 AM, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 12 नून और 15 डिग्री ईस्ट पे 1 PM। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, क्यों ये हो रहा, बिल्कुल यू शुड अंडरस्टैंड। एक बार अगर आप चैप्टर फिर से पढ़ोगे, इसको अगर नहीं समझ में आया, वीडियो आप दोबारा देखिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। अगर आप समझिएगा तो इंटरेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा। तो समझने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए, और अगर आप कोशिश करिएगा तो समझ में भी आएगा, है ना। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब क्या हो रहा है कि हर 15 डिग्री पे ये क्या हो रहा है, 1 घंटा आगे होता जा रहा है ना। हर 15 डिग्री पे टाइम का जो ड्यूरेशन का, टाइम का जो फर्क है वो बना हुआ है। अगर यहाँ पर 12 बज रहा है तो 15 डिग्री पे 1 बज रहा है, तो 30 डिग्री ईस्ट पे क्या बजेगा, अगर ये 30 डिग्री ईस्ट है तो यहाँ पर क्या टाइम होगा, तो जो 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो फिर से 1 घंटे आगे है, वो इस वाले 15 डिग्री ईस्ट से 30 डिग्री ईस्ट फिर 1 घंटे आगे है। तो यहाँ पर 1 बज रहा है और 30 डिग्री ईस्ट में 2 बज रहा है। ठीक है, ऐसे ही फिर 15 डिग्री और आगे बढ़े हैं, अगर हम 45 डिग्री पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो 45 डिग्री पे जब हम पहुंचेंगे तो 45 डिग्री ईस्ट, तो फिर वहां पर क्या बज रहा होगा, वहां पे 3 बज रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे अगर 15-15 डिग्री पे हम आगे बढ़ते जाएं, अर्थ इज स्फीयर, है ना, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, हम पीछे की तरफ अब जा रहे हैं। तो जब हम इधर पीछे वाले 180 डिग्री पे पहुंचेंगे तो कितने घंटे क्रॉस कर रहे होंगे, इसको भी आप अगर यूनिटरी सिस्टम से समझ लेंगे तो बहुत आपके लिए, मतलब इट विल बी गुड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो ये जो 15 डिग्री की बात हम कह रहे हैं कि 15 डिग्री में 1 आवर का डिफरेंस आ जा रहा है ना। अगर ईस्ट में है तो 1 आवर आगे चला जा रहा है, अगर वेस्ट में है तो 1 आवर पीछे हो जा रहा है। ठीक है, अब जो हमारा 0 डिग्री मेरिडियन है, ठीक है, 0 डिग्री मेरिडियन के साथ लगा हुआ है कौन सा मेरिडियन, 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों मिलकर के एक सर्कल बनाते हैं।
है ना, एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री। एक ऐसा सर्कल बनाते हैं जो कि अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। तो जब ये 15 डिग्री करते 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 कहाँ पहुँच गए, 180 डिग्री मेरिडियन पे। कितना देर लगेगा 15 डिग्री का अगर हम एक लैप लेते हैं तो 180 डिग्री पहुंचने में कितने घंटे लगेंगे? 15 डिग्री पहुंचने में अगर 1 घंटा लग रहा है तो 1 डिग्री पहुंचने में 1/15 लगेगा। तो 180 डिग्री पहुंचने में हमें कितना टाइम लगेगा? इसको हम सॉल्व करेंगे। ये समझ में आया? 15 डिग्री मूव करने में अर्थ को 1 घंटा लग रहा है ना। 1 डिग्री मूव करने में कितना टाइम लगेगा अर्थ को? 1/15। ओके, ये यूनिटरी सिस्टम से आप मैथ सॉल्व करते वही चीज़ है ये। तो 180 डिग्री मूव करने में 180 डिग्री मूव करने में अर्थ को कितने घंटे लगेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 180, है ना। तो क्या हमारा आंसर होगा? अगर हम 180 को 15 से डिवाइड करेंगे तो एक टाइम में जाएगा 15, है ना, फिर 3 रिमाइंडर बच जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 0 30। तो ये कितना हो गया? 12 आवर्स। तो जब अर्थ हमारा 180 डिग्री मूव करता है तो 12 घंटे का अंतर हो जाता है। तो अगर इस समय ग्रीनविच पे 12 बजे हैं दोपहर के, तो 180 डिग्री जो मेरिडियन हमारा है वहाँ पर मिडनाइट है 12 बजे का, क्योंकि 12 से 12 ये 12 घंटा है ना। 12 आवर का डिफरेंस हो जा रहा है। 0 डिग्री से 180 डिग्री मेरिडियन तक जाने में 12 आवर्स का डिफरेंस हो जा रहा है। तो जहाँ पर जब ग्रीनविच पे अगर 12 बज रहे हैं दिन के, तो 180 डिग्री पे रात के 12 बज रहे होते हैं। ठीक है, ये हमने ईस्टर्न साइड को समझ लिया। अब अगर वेस्टर्न को समझे तो वेस्टर्न जो है वो पीछे चल रहा है ना। अभी तो ग्रीनविच पे 12 नून हुआ है, तो 15 डिग्री वेस्ट पे 11 ही बजे हैं। इसी तरह से अगर 30 डिग्री वेस्ट को हम देखें तो वहाँ क्या बजा है? 30 डिग्री वेस्ट पे 10 बजा है ना, 10 AM। ऐसे ही 45 डिग्री वेस्ट पे क्या बजा है? 9। तो ऐसे ही पीछे जाते जाते जब हम 180 पे पहुंचेंगे तो वहां पर क्या कंडीशन होगी? वहां पर भी 12 मिडनाइट ही होगा, लेकिन डेट चेंज होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, नहीं समझ में आए एकदम मत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिक्कत होती है ना, इतना आसान नहीं है, मतलब तुरंत भर में एक बार में मैंने बताया और आपको समझ में आ गया। बट यू कीप यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जब हम इधर से वेस्ट से जा रहे हैं पीछे की तरफ 180 डिग्री पे पहुंच रहे हैं, तो वहां भी मिडनाइट ही है। जगह तो एक ही है, वहां पे सन का रे पड़ नहीं रहा है, तो ऑफकोर्स वहां पे रात ही होगी, है ना। और 0 डिग्री से बिल्कुल वो 180 डिग्री है, तो अगर यहाँ 12 बजे हैं दिन के तो वहाँ रात का 12 बजा होगा। बट टाइम का डिफरेंस डेट का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि ईस्ट वाला जो हमारा पोर्शन है वो आगे चल रहा है और वेस्ट वाला जो पोर्शन है वो पीछे चल रहा है। तो इस कारण से एक दिन का फर्क हो जाता है। इस 180 डिग्री के इधर एक दिन आगे, 180 डिग्री के उधर एक दिन पीछे। दिस इज द डिफरेंस ऑफ 1 डे। ओके, on page number 15 in your book, it's not 15, it's page number 14. Okay, on page number 14 one figure is given. हमें समझने में इसलिए भी दिक्कत होती है क्योंकि अर्थ जो है स्फेरिकल है ना, गोल है, तो हमें चीज़ों को विजुअलाइज करना पड़ता है। तो अगर इसको हम एक फ्लैट पेपर पे इसको हम बना दें, जिसको हम मैप कहते हैं, तो अगर वर्ल्ड मैप को आप देखेंगे, ये जो फिगर आपका पेज नंबर 14 में दिया है, दैट इज द मैप ऑफ द वर्ल्ड। और उसमें आप देखेंगे कि जो ग्रीनविच है
वो दिखाया हुआ है 0 डिग्री से, और उसके बाद आपका जो ईस्ट में जो पोर्शन है उसके सामने अहेड लिखा हुआ है, और जो वेस्ट वाला पोर्शन है उसमें बिफोर लिखा हुआ है ना। तो अगर हम ग्रीनविच के ईस्ट में जाएंगे तो वो आगे का टाइम बताएगा, और ग्रीनविच के वेस्ट में जाएंगे तो वो पहले का टाइम बताएगा, ठीक है। एंड यू विल सी कि इसमें जो कंट्रीज़ हैं उसको डिफरेंट कलर्स से भी शो किया गया है, ब्लू, देन येलो, वाइट। तो ये जो डिफरेंट कलर्स हैं वो डिफरेंट टाइम जोन्स को बता रहे हैं, क्योंकि हर जगह टाइम अलग अलग होता है, पूरी दुनिया में टाइम अलग अलग होता है ना। तो इस तरह से हमको चीज़ों को समझना है। और उसमें आप एक और चीज़ देखिएगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन भी है ना। अब ये इंटरनेशनल डेट लाइन वही हुआ जो हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है ना। ये क्या है, ये जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जहां पर हमने आपको बताया कि डेट चेंज हो जाता है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अगर ईस्ट में है तो वो एक डेट आगे चलता है, और अगर 180 डिग्री के वेस्ट में है तो वो पीछे चलता है। 180 डिग्री ईस्ट में अगर आज 21 जून है तो 180 डिग्री वेस्ट में आज 20 जून है, ठीक है। ये इस तरह से काम करता है, और इसीलिए इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, क्योंकि उस लाइन को क्रॉस करते डेट चेंज हो जाएगा। इफ़ यू क्रॉस दैट लाइन तो आप 21 जून से अगर आप वेस्ट में जा रहे हैं तो 20 जून में पहुंच जाएंगे, और अगर वेस्ट से अगर ईस्ट में आ रहे हैं तो 21 जून में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो जब हम फ्लाइट से इस तरह का वो करते हैं, जर्नी करते हैं, तो बड़ा माइंड में एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जो कि बहुत ही नेचुरल है। ये होता है क्योंकि दिन रात का जो फ़र्क है वो समझ में माइंड उसको वो नहीं कर पाता है, अब्जॉर्व नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। और ठीक है, अब हम लोग थोड़े से, ये तो हमने देख लिया टाइम के बारे में। एक चीज़ और लोकल टाइम होता है, कुछ स्टैंडर्ड टाइम होता है। क्या है ये लोकल टाइम, क्या है स्टैंडर्ड टाइम, क्या है, अब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। लोकल टाइम जो होता है, किसी भी प्लेस पे जब हम होते हैं तो वहाँ पर सन जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो वो कौन सा टाइम होता है, दैट इज़ 12 नून, है ना। जब सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है तो वो 12 नून है, और ये जो 12 नून जो दिखाता है हमारी घड़ी में, दैट इज़ लोकल टाइम। लोकल टाइम जो कि एक पर्टिकुलर मेरिडियन पे जो सन की लाइट पड़ रही है उसके अकॉर्डिंगली जो टाइम होता है, दैट इज़ लोकल टाइम, है ना। और हर मेरिडियन पे सन का लाइट डिफरेंट टाइप से पड़ता है, इसलिए हर जगह पर जो टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। कितना डिफरेंट होता है, कैसा डिफरेंट होता है, वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि जैसे एक ही कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री के अंदर बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स होंगे। अगर कंट्री बड़ी है तो उसमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स होंगे, है ना। तो हर लॉन्गिट्यूड पे सन का रे डिफरेंट टाइप से पड़ रहा है, तो हर लॉन्गिट्यूड पे डिफरेंट टाइप से सन का रे पड़ रहा है, तो हर लॉन्गिट्यूड पे टाइम भी डिफरेंट होगा। तो फिर कैसे मैनेज होगा एक ही कंट्री के अंदर डिफरेंट टाइम्स, क्योंकि कंट्री बड़ी है, बहुत सारे, सपोज जैसे अगर हम इंडिया को देखें, ठीक है, इंडिया जो हमारी कंट्री है, इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जिसको हम कहेंगे कि कितने लॉन्गिट्यूड से कितने लॉन्गिट्यूड में इंडिया एक्सटेंडेड है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम, हम कह सकते हैं 68 डिग्री ईस्ट से ये स्टार्ट होती है, 97 डिग्री ईस्ट तक इसका एक्सटेंशन है। अभी मैं थोड़ा सा इसको बता रही हूँ। ठीक है, map, I am not good in drawing map, okay, I am just giving you an idea, don't get any kind of inspiration from my this drawing skill, okay. So this is a map,
ओके, ये हमारा इंडिया है सपोज, ठीक है। अब इसका जो कहाँ है ये इंडिया, अर्थ पे है ना, अर्थ पे ये है। और अगर हम देखें तो सपोज ये बड़ा सा अर्थ है, बहुत प्रोपोर्शन में तो सही नहीं बन पाएगा, बिकॉज अगर इंडिया इतना बड़ा है तो अर्थ मुझे बहुत बड़ा बनाना होगा, बट यू जस्ट गेट एन आइडिया, आपको एक आइडिया के लिए मैं बता रही हूँ। बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस करेंगे ना इंडिया से, है ना, बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस करेंगे। तो इंडिया का जो वेस्टर्न, एकदम वेस्टर्न वाला छोर हुआ ये, और एकदम जो ईस्टर्न वाला छोर हुआ, ये दोनों जो एंड है, वेस्टर्न एंड एंड ईस्टर्न एंड, ठीक है। जो वेस्टर्न एंड है और जो ईस्टर्न एंड है, उस पे जो लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है वो कितनी है। वेस्टर्न एंड में लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है 68 डिग्री ईस्ट, ठीक है। एंड ईस्टर्न एंड पे जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है, इंडिया को क्रॉस कर रहा है, उसकी कितनी वैल्यू है, दैट इज 97 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो अब ये 68 और 97 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में इंडिया सिचुएटेड है। कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, करीब करीब अगर हम देखें तो इट्स अराउंड 30, ये एग्जैक्ट नहीं है, इसके साथ पॉइंट्स भी जुड़े हुए हैं, मैंने इसको पॉइंट्स को हटा दिया है। तो इन पूरा का पूरा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 29 डिग्री का है। ये 29 कहाँ से आया, 97 माइनस 68, है ना, 17 में से 8 गया तो 9, 8 में से 6 गया तो 2, यस, दिस इज 29 डिग्री, है ना। तो अब ये 29 डिग्री में क्या होगा कि पूरी कंट्री में टाइम तो एक होगा नहीं, टाइम डिफर करेगा। इसको हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके।